It's working. Good evening, everyone. In this class, जो हमने day 1 पे theoretical concepts छोड़े थे about research RM, वो cover करेंगे. So हमने देखा था research is a systematic investigation, which is controlled, empirical and critical. जहाँ पर researcher के personal bias उसको influence नहीं कर रही. So what we missed was purpose of research. So research can be exploratory, where our objective is to gain familiarity with the phenomena. या कोई phenomena which is already known, उसके अंदर उसको हम deeply जानना चाहते हैं. We want to dig deeper into it, so it is called exploratory research. Next is descriptive studies, the descriptive research studies, where the purpose is to describe, accurately portray the characteristics of an individual situation or a phenomena. Third, diagnostic studies. The objective is to determine the frequency with which something occurs. Most widely जो clinical research होती है उसमें इसका use होता है. And the last is experimental research और hypothesis testing research, जहाँ पर हम दो variables और ज़्यादा variables के बीच में causal relationship establish करना चाहते हैं. Not necessarily एक research का एक ही purpose होगा. So our research can be simultaneously exploratory and descriptive and diagnostic. मतलब कोई भी combination बन सकता है. And माइट भी कि एक ही रिसर्च सारे पर्पस फुलफिल करती है. तो इट इज नॉट नेसेसरी कि कोई एक रिसर्च एक ही कैटेगरी में फॉल करेगा. देन डायमेंशंस ऑफ रिसर्च में हमने देखना है थियोरेटिकल रिसर्च होती है ना अप्लाइड रिसर्च होती है. थियोरेटिकल रिसर्च मींस जहाँ पर आर मेन ऑब्जेक्टिव इज थ्योरी डेवलपमेंट, थ्योरी कंस्ट्रक्शन जहाँ पर ऑब्जेक्टिव हो जाता है, दैट इज थियोरेटिकल रिसर्च. एंड इन केस ऑफ अप्लाइड रिसर्च जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश थियरीज हैं उनको हमको कैसे रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करना है. So theoretical is about theory development, theory construction. Applied research is about application of theories. Next, another classification can be laboratory versus field research. So laboratory research जहाँ पर हमने क्या करा लैब में रिसर्च कंडक्ट करी है, टोटल कंट्रोल है ओवर वेरिएबल्स टोटल ओवर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स. इन केस ऑफ फील्ड रिसर्च हम रियल लाइफ सिचुएशन में अपना रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं. सो जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स है उन पे कंट्रोल कम हो जाता है. And as we studied earlier, in case of field research, external validity कम हो जाती है automatically because we can't properly control extraneous variables. एक third term हमको सुनने में आता है, that is action research. Action research is targeted at a particular issue. कोई हम एक research problem लेके चलते हैं जिसका solution हमको immediately solution चाहिए जिसका. So we take up a problem, we do research जिसका आंसर मिल सके, and then it is called action research. So what are the characteristics of a good research? First one, it is systematic. It should be systematic. Systematic means it follows a procedure, which is a well-established procedure. Next, it should be empirical. Empirical means it is supported by evidence. Third, it is valid and verifiable. Valid means जो भी हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है, जो भी एरिया हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं उसी को हमारा रिसर्च सपोर्ट करे. वेरीफिएबल मीन्स कि इफ इट इज कंडक्टेड अगेन तो हम रिजल्ट्स को वेरीफाई कर सके इन डिफरेंट सिचुएशंस, अक्रॉस सिचुएशंस रिजल्ट्स को वेरीफाई कर सके. लॉजिकल हम जानते हैं लॉजिक से आना चाहिए, लॉजिकल कोहेरेंस होना चाहिए रिसर्च आइडिया में, रिसर्च के प्रोसीजर में. एंड अगेन अ गुड रिसर्च शुड हेल्प इन थ्योरी डेवलपमेंट. हम जानते हैं कि जो भी डिफरेंट थियरीज हमें साइकोलॉजी में मिली है, बाकी सोशल साइंसेज में मिली है, दे आर कमिंग फ्रॉम गुड रिसर्च. And replicable, the most important condition is replicable. Replicable means findings can be repeated. If you conduct a research and if I conduct a research and I follow the same steps that you followed, so findings should be same. So if a research is replicable, only then it is a good research. ये सब हम कवर कर चुके थे. Then this is something we skipped. Population and sample. Population को यूनिवर्स भी हम लोग बोलते हैं. So it is a total set of subjects of interest in a study. जो भी हमारा इंटरेस्ट एरिया है, जो जिन लोगों पे भी हम स्टडी करना चाह रहे हैं, तो टोटल नंबर कितना है, दैट इज आवर पॉपुलेशन.
पॉपुलेशन शुड बी आइडेंटिफाइएबल एंड वेल स्पेसिफाइड ग्रुप. कुछ स्पेसिफिक ट्रेड्स हमको आइडेंटिफाई करने होते हैं कि जो जो ट्रेड्स अवेलेबल हैं उनके बेस पे हम अपने पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करेंगे. मान लीजिए हम टॉकिंग अबाउट अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, यूजी पीजी स्टूडेंट्स मान लीजिए. I'll specify कि I'll specify the geographical area of Uttarakhand. Then I'll specify their uh, undergraduate or postgraduate students. Then I can also specify their streams: art, commerce, science. I can specify their age group also. So जितना specific रहेगा उतना easily we can identify our population. Population can be finite or infinite. Finite where we can count our population, and infinite where counting is not possible. Simple is, as we know, कि population is a large number of people and it is not feasible to conduct a study on population itself. So we draw a subset of population जिसको हमको study करना है. So this is our sample. Now what is the method through which we draw a sample out of population? So दो तरीके के sampling method use किए जाते हैं. First one is probability sampling and second one is non-probability sampling. Probability means where each subject of the population has equal probability, equal chance of being part of sample. So probability sampling is based on the principle of randomization. ये भी तीन तरीके के हो सकते हैं. Simple random sampling is the first one. In case of simple random sampling, जो भी हमारा population है उसका पूरा लिस्ट हमारे पास होना चाहिए and then we'll randomly select people out of it. जब पूरी लिस्ट हमारे पास अवेलेबल होगी that means everyone has an equal chance. एंड एक इंडिविजुअल की सिलेक्शन से दूसरे इंडिविजुअल का सिलेक्शन अफेक्ट नहीं होगा. सो दिस इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. नेक्स्ट मेथड इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मान लीजिए दिस इज माय पॉपुलेशन, दिस ब्लॉक इज माय पॉपुलेशन एंड मैंने रैंडमली इसी ब्लॉक में से अदर लिस्ट ऑफ दिस पॉपुलेशन एंड मैंने रैंडमली सैंपल कलेक्ट कर लिया. सेकेंड वॉज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. Stratified random sampling means where we create stratas. ये वाला एग्जांपल देखिए, ये पूरा पॉपुलेशन है. देन आई क्रिएटेड स्ट्राटास. मान लीजिए कि जब मैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर रही हूँ एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बीच में 3 ग्रुप है. तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में एंड में क्या हो सकता है कि एक सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो, एक का कम हो. बट व्हेन वी क्रिएट अ स्ट्राटा तो हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि पर्टिकुलर ग्रुप में से हमको इतने % पॉपुलेशन चाहिए, सैंपल चाहिए. सो अगर हमने 4 स्ट्राटा बनाए मीन्स इस वाले स्ट्राटा से 25% ऑफ सैंपल आएगा, इस वाले से 25% आएगा, सेम. तो अभी क्या होगा कि जो 4 ग्रुप जो हमारे पॉपुलेशन में है सेम विल बी रिप्रेजेंटेड इन आवर सैंपल. सो अगर पॉपुलेशन में 4 ग्रुप हैं तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग से इट विल बी इंश्योर्ड कि वो चारों ग्रुप इक्वली रिप्रेजेंटेड हैं हमारे सैंपल में. Stratified random sampling can be proportional or disproportional. Proportional means कैसे होगा? मान लीजिए अगर हम मेल फीमेल की बात करें एंड हम अज्यूम कर रहे हैं कि मेल इज 51% एंड फीमेल इज 49%. सो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में जब प्रोपोर्शनल बनाएंगे तो वी मेक श्योर कि जितना प्रोपोर्शन पॉपुलेशन में है उतना ही प्रोपोर्शन सैंपल में आएगा. अगर पॉपुलेशन में 49% फीमेल है तो सैंपल में भी 49% फीमेल आएंगे एंड 51% मेल है तो 51% मेल आएंगे पॉपुलेशन में, सैंपल में. देन नेक्स्ट इज डिसप्रोपोर्शनल. मान लीजिए कोई माइनॉरिटी ग्रुप है जो पॉपुलेशन का सिर्फ 10% ही बिलोंग करता है पॉपुलेशन में, 90% के मेजॉरिटी ग्रुप है. इन दिस केस अगर हम 99:1 के रेशियो में सैंपल ड्रॉ करेंगे तो माइनॉरिटी ग्रुप का सैंपल बहुत छोटा रहेगा. सो स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो सकता है. सो व्हाट वी कैन डू, हमने क्या करना है कि डिसप्रोपोर्शनल लेना है. हमने क्या करना है कि 50-50 का लेना मान लीजिए. तो ऑल दो पॉपुलेशन में माइनॉरिटी ग्रुप सिर्फ 10% था, बट जब हमने सैंपल ड्रॉ किया है तो हमने 50% ड्रॉ किया है माइनॉरिटी, 50% ड्रॉ किया मेजॉरिटी. 50-50 का हमने कॉम्बिनेशन ले लिया. यहाँ पर क्या होगा कि एक तो जो माइनॉरिटी ग्रुप है उसको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा. सेकेंड, स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन हमारे लिए ईजी रहेंगे, उसके रिजल्ट्स रिलायबल रहेंगे. थर्ड वे कैन बी क्लस्टर सैम्पलिंग, उसका मल्टी स्टेज सैम्पलिंग भी बोल देते हैं. सो क्लस्टर सैम्पलिंग याद रखना है फनल शेप से.
This is cluster. So this was my total population. Then randomly I drew clusters. मान लीजिए उत्तराखंड मेरा पूरा population हो गया, उत्तराखंड के सारे कॉलेज मेरे population हो गए. उत्तराखंड के सारे कॉलेजेस मेरे पॉपुलेशन हो गए. देन आई ड्रॉ सम क्लस्टर्स. रेंडमली आई चूज सम डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है. देन अगेन सारे डिस्ट्रिक्ट्स को जो चूजन डिस्ट्रिक्ट्स है उन पे भी स्टडी करना इज नॉट फिजिबल. सो आउट ऑफ दोज डिस्ट्रिक्ट्स में रेंडमली कुछ कॉलेज सेलेक्ट करूंगी. अगेन ऐसा भी पॉसिबल नहीं कि उन कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स पे मैं स्टडी कर सकती हूँ. सो अगेन उन डिस्ट्रिक्ट्स के कुछ कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स विल बी पार्ट ऑफ माय सैंपल. सो देयर विल बी अ क्लस्टर. कैसे? So this is Uttarakhand, then these are some districts, and then point में क्या कुछ colleges हैं, then यहाँ पर मैंने data collection किया. Because at every step randomization is there, so it is part of random sampling, probability sampling. Then next method can be non-probability sampling, जहाँ पर probability is not equal for everyone. So first is very common, quite widely used, is haphazard, accidental, and convenience sampling. So haphazard sampling is when you don't have a criteria कि जिसको सैंपल में इंक्लूड करना है किसको नहीं करना है. रेंडमली वी गो एंड जो भी हमको मिलता है, जो भी अवेलेबल है, उसको हमने जो भी कन्वीनियंट है हमारे लिए उसको हमने सैंपल में इंक्लूड कर लिया. सो दिस इज नॉट दिस विल नॉट गारंटी यू कि जो आपका सैंपल है दैट इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर पॉपुलेशन. बट अगेन क्योंकि इट इज अगेन कन्वीनियंस सैम्पलिंग, तो इट इज क्वाइट वाइडली यूज्ड. कोटा सैम्पलिंग में व्हाट वी डू, वी आइडेंटिफाई रेलेवेंट कैटेगरीज. जैसे मान लीजिए दिस इज आवर पॉपुलेशन एंड हमने एक कोटा बना लिया कि हमको इस पॉपुलेशन में से मेल और जिनका एज 50 से अबव है वो इंक्लूड करने. सो दिस पॉपुलेशन में से जो जो ये वाले क्राइटेरिया फुलफिल करता होगा वो हमारे सैंपल में आ जाएगा. कोटा बना लिया तो अगेन हम किसी भी वेरिएबल के बीच में विच इज रिलेवेंट वेरिएबल उसके बेस पे हम एक कोटा बना सकते हैं एंड सैम्पलिंग कर सकते हैं. देन थर्ड इज पर्पसिव सैम्पलिंग. Purposive sampling is considered better because it is dependent or it is based on the judgment of the researcher. Purposive जैसे में समझ में आ रहा है कि which serve the purpose. So it is the discretion of the researcher to determine कि कौन से individuals उस research study का purpose fulfill कर रहे हैं. For this, researcher should have some inclusion and exclusion criteria. So on the basis of those criteria, those predetermined criteria, researcher can determine कि किसको sample में include करना है, किसको नहीं करना है. Purposive sampling again is quite commonly used method of sampling. Then fourth one is snowball sampling. इसमें we are using a network or chain referral. It is used जब हमारा population बहुत sparse population होता है, बहुत कम लोग available होते हैं. मान लीजिए आपको स्टडी प्लान करें on drug addicts. So it's not easy to find drug addicts. मान लीजिए आप किसी को कोई आपको मिला, किसी को आप जानते हैं, then आप उससे जानोगे कि आप किसी को जानते हो क्या. Then you will create a chain. जिसको आपने रेफर किया आप उससे इंफॉर्मेशन लोगे, फिर ऐसे करके आप चेन बनाते जाओगे एंड यू विल गेट टू नो पीपल. या मान लीजिए इंटरनेट एडिक्शन के आपको सैंपल चाहिए, तो व्हाट विल यू डू, आप मान लीजिए किसी को जानते हैं, किसी के थ्रू आपको किसी के बारे में पता चलता है, देन यू फॉलो दैट पर्सन, उसके थ्रू आप किसी और को जानोगे एंड देन एक चेन क्रिएट हो जाएगा. तो दिस इज हाउ वी गो फॉर स्नोबॉल सैम्पलिंग. फिफ्थ इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. कुछ किताबों में इसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंडर रखा जाता है, बट इट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड. जहां पर इसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंडर रखा जाता है, इट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग. अभी मैं बताती हूँ कि रैंडम क्यों है एंड रैंडम क्यों नहीं है. सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में वी हैव अ लिस्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन, नॉट प्रॉपर लिस्ट. हम क्या करते हैं, आउट ऑफ द पॉपुलेशन हमने कोई नंबर चूज कर लेना है एंड देन एवरी nth पर्सन चूज करना है. मान लीजिए मैंने चूज करा 5, so every fifth person I'll choose. See, because every fifth person जो भी मैं चूज कर रही हूँ it is randomly, तो इसको कुछ किताबों में इसे probability sampling के अंदर रखा जाता है. बट एज वी कैन सी कि जो 1 to 5th नंबर पे जो पर्सन है, जो बीच के पर्सन है, उनको इक्वल चांस नहीं मिल रहा है बीइंग पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन. सो इट कांट बी पुट अंडर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड.
ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट आर द पोटेंशियल बायस इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो जैसे हम जान रहे हैं कि जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, क्योंकि इट इज नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी इक्वल चांसेस, तो फर्स्ट इशू इज सैम्पलिंग बायस। दैट मीन्स जो आपका सैंपल है दैट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, एंड अगर सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेगा दैट मीन्स आवर रिसर्च स्टडीज कैन नॉट बी जनरलाइज्ड, रिसर्च फाइंडिंग्स कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। दूसरा क्या हो सकता है, सिलेक्शन बायस, कि किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन को लेकर रिसर्चर बायस्ड हो, नॉट नोइंगली अननोइंगली मे बी क्या करे कि वो किसी को सैंपल में इंक्लूड कर ले, किसी को ना इंक्लूड करे। तो रिसर्चर्स बायस यहाँ पे एक नेगेटिव फैक्टर की तरह काम करता है। एंड द थर्ड थिंग इज अंडर कवरेज। दैट मीन्स इफ आवर पॉपुलेशन इज स्पार्स, तो क्या रहेगा कि वो हो सकता है कि हमने उसको मिस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एल्डरली पॉपुलेशन पे कोई स्टडी करना चाह रही हूँ एंड आई एम यूजिंग सम गूगल फॉर्म जैसा करके कुछ ऑनलाइन मैंने मीडियम चूज कर लिया एंड पॉपुलेशन इज एल्डरली पॉपुलेशन, तो अगर मैं रैंडमली, अगर मैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे ही जाती हूँ, सपोज मैं एक कन्वीनियंस सैम्पलिंग या पर्पस सैम्पलिंग वाला भी यूज कर लेती हूँ, एंड बिकॉज इट इज अ गूगल फॉर्म, तो क्या रहेगा ना कि जो जिनके पास इंटरनेट एक्सेस है सिर्फ वही है मेरे सैंपल का पार्ट बन पाएंगे। सो होगा क्या कि जो फाइंडिंग्स होंगे दैट विल बी एप्लीकेबल टू दैट पॉपुलेशन ओनली। सो अंडर कवरेज इज आल्सो एन इशू। So this was a question being asked. In quota sampling, the probability of each element of population being included in the sample is equal to sampling fraction, can be specified in advance, cannot be specified in advance, and is 1 by k, where k is the number of strata. तो हम याद करते हैं कोटा सैम्पलिंग में हमने देखा था कि जो हमने क्या करना है, कोटा डिटरमाइन कर लेना है। तो वो कोटा क्या है, हमारा एक एलिमेंट है, तो उसको इंक्लूड होने के चांसेस कितने हैं, तो आंसर इज 1 by k। मान लीजिए अगर हमारे पास 3 कोटा डिसाइड हो गए, ठीक है, एक आउट ऑफ 3 एक एलिमेंट के चांसेस कितने, 1 by 3। सो द आंसर इज 1 by 3 वेयर k इज द नंबर ऑफ स्ट्राटा। नेक्स्ट वी विल सी व्हाट आर द एथिक्स इन कंडक्टिंग रिसर्च। सबसे पहले हम जानते हैं एथिक्स क्या होता है। सो एथिक्स इज कोड ऑफ कंडक्ट और नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट जो डिस्टिंग्विश करते हैं व्हाट इज एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज अनएक्सेप्टेबल। सो व्हेन वी से रिसर्च एथिक्स, सो ये जो भी हमने एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल देखा दैट इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च। So this is about conducting research. While conducting research, which are the ethical principles that you need to follow? First thing is informed consent and voluntary participation. तो जब आप किसी इंडिविजुअल से, किसी पार्टिसिपेंट से डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग इज कि आप उसको पूरे डेटा के बारे में, पूरे अपने रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में, रिसर्च प्रोसीजर के बारे में, यू विल गिव हिम द डिटेल इन्फॉर्मेशन जितना पॉसिबल है। आप बताएंगे रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, आप रिसर्च क्यों करना चाह रहे हैं, व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव्स, आप क्या देखना चाह रहे हैं, and then you will seek a consent which should be written consent कि आप अपनी मर्जी से इस रिसर्च का पार्ट बन रहे हैं। सो द पार्टिसिपेशन इज वॉलेंट्री। एट द सेम टाइम आप उनको बताओगे कि एट एनी पॉइंट ऑफ रिसर्च आप विड्रॉ कर सकते हैं आउट ऑफ रिसर्च। सो यू आर नॉट गोइंग टू कोवर्स देम और इंसेंटिवाइज देम। किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं क्रिएट किया जाएगा या उनको कोई इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दैट रिसर्च। इट शुड बी देयर वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट इज प्राइवेसी, अनोनिमिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा। जो भी आपका डेटा है उसका वो पार्ट जिसके थ्रू उसको उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, मतलब उनका नाम हो गया, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया, दैट यू आर नॉट गोइंग टू पुट इन पब्लिक डोमेन इन एनी केस। जो भी आइडेंटिफिकेशन बेस्ड डेटा है तो उनका डेटा प्राइवेसी प्राइवेसी मेंटेन की जाएगी। यू विल मेक देम अंडरस्टैंड कि जो भी डेटा है दैट इज जस्ट फॉर रिसर्च पर्पस। एनोनिमिटी, कोई भी जिससे नेम आइडेंटिफाई कर सकता है वो हम नहीं यूज करेंगे, एंड डेटा विल बी कॉन्फिडेंशियल। डिसेप्शन, सो आइडियली वी शुड नॉट यूज डिसेप्शन। वी शुड टेल देम कि हमारा रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, हम क्या स्टडी करना चाह रहे हैं। बट एज वी नो कुछ रिसर्च प्रॉब्लम्स आर कॉम्प्लिकेटेड। जैसे मान लीजिए आई वांट टू स्टडी अबाउट प्रो सोशल बिहेवियर, एंड इफ आई टेल देम कि मैं प्रो सोशल बिहेवियर को स्टडी करना चाह रही हूँ, तो इट इज लाइकली कि देयर बिहेवियर विल चेंज, राइट। दे विल बिहेव इन अ मैनर विच इज सोशली डिजायरेबल। तो ऐसे केस में अगर उनको
हम एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव बता देंगे तो उनका बिहेवियर हम एक्चुअल में स्टडी नहीं कर पाएंगे. सो देयर वी कैन यूज डिसेप्शन, बट द डिसेप्शन की कंडीशन क्या है कि हमको डी ब्रीफिंग करनी है. आफ्टर द रिसर्च इज ओवर हमको उनको पूरा प्रोसीजर समझाना है कि एग्जैक्टली हम क्या स्टडी करना चाह रहे थे, व्हाट वाज द प्रोसेस. डिसेप्शन का एग्जांपल मैं देना चाहूंगी. One of my research scale that actually measures cognitive distortions, but it is named as types of thinking skill. So in instructions are like उसमें 10 thinking style दिए हुए हैं, मतलब 10 cognitive distortions are there. in instructions में दिया है कि 10 thinking style है and we want to know कि आप किस thinking style को कितना यूज कर सकते हो. So this is a kind of deception. आप अपना पर्पस को हाइड कर रहे हो. But this is okay as far as you do debriefing. Next is no physical and psychological harm. We have to make sure कि उनको किसी भी तरीके से कोई फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म ना पहुंचे. कुछ ऐसा हम थ्रू आवर रिसर्च ऐसा कुछ ना करेंगे कि उनका कोई पास्ट नेगेटिव इवेंट या कोई पास्ट ट्रॉमा एक्टिवेट हो जाए, ट्रिगर हो जाए. सो वी हैव टू मेक श्योर कि उनको कोई हार्म ना पहुंचे. सो दीज आर 5 प्रिंसिपल्स suggested by APA, American Psychological Association. So this is more towards positive end कि जब भी हम रिसर्च कंडक्ट करें तो वी हैव टू मेक श्योर कि इसका कुछ ना कुछ यूजेस, कुछ ना कुछ बेनिफिट सैंपल के लिए भी, पॉपुलेशन के लिए भी हो. So this was about while conducting our research. Next is ethics in reporting research. जब हमने रिसर्च कंडक्ट कर लिया है, वी हैव एनालाइज आवर डेटा या डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, देन फाइनल रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग जब करते हैं उसके बारे में. The first thing is data fabrication. See, this is what you should not do, वैसे वाला. So data fabrication means actually में आपने data collection नहीं किया है, you are just creating it on your own. So on ground आपने data collection नहीं किया, आपने data fabricate कर दिया है. So data fabrication is unethical. Next is data falsification. Data falsification means data falsification कब होगा? जब आपने क्या किया है, डेटा को मैनिपुलेट किया है. ठीक है. जब भी आपने डेटा को चेंज किया है कि आपका जो रिसर्च हाइपोथेसिस है उसको सपोर्ट करने के लिए आपने उसको मैनिपुलेट किया है. तो आपको लगता है कि डेटा नॉर्मलिटी को, अजम्पशंस को फुलफिल नहीं कर रहा था, आपने कुछ वैल्यूज चेंज कर दी सो दैट वो उस अजम्पशन को फुलफिल करते हैं, आपका रिसर्च पूरा हो जाए. सो फॉल्सिफिकेशन अगेन इज अनएथिकल. एंड नेक्स्ट इज प्लेजरिज्म. प्लेजरिज्म क्या है कि किसी और के आइडिया को आप अपने नाम पर उसको प्रमोट करेंगे. सो तरीके से किसी के आइडिया को चुराना इज प्लेजरिज्म. प्लेजरिज्म के लिए 2 सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं. ये प्लेजरिज्म असेस करने के लिए यूज किए जाते हैं. फर्स्ट इज ओरकुंड एंड सेकंड इज टर्निटिन. सो एज यू नो 10% तक का प्लेजरिज्म इज एक्सेप्टेबल. जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो क्रिटिकल वैल्यूज की बढ़ती जाएगी. सो वो हमको अवॉइड करना है. एक टर्म यूज होता है सेल्फ प्लेजरिज्म. मान लीजिए मैं कोई पेपर पब्लिश करती हूँ या कोई भी मेरा रिसर्च वर्क इज इन पब्लिक डोमेन नाउ, पब्लिश्ड है, और अगर मैं नेक्स्ट पेपर लिखती हूँ एंड एज आई बिलीव कि वो तो मेरा ही आइडिया है, सो मुझे साइटेशन देने की जरूरत नहीं है. बट दिस इज नॉट लाइक दैट. इवन इफ इट इज माई ओन आइडिया, इट्स माई ओन पेपर, जब भी नेक्स्ट टाइम मैं किसी नेक्स्ट पेपर में उसको इंट्रोड्यूस करूंगी, उसके बारे में बात करूंगी, तो आई हैव टू साइट माई ओन पेपर, माई ओन प्रीवियस पेपर. So plagiarism you can avoid by paraphrasing and then giving proper citation. जहां जहां से आपने आइडियाज लिए आप प्रॉपर साइट करोगे तो यू कैन अवॉइड प्लेजरिज्म. नेक्स्ट इज ऑथरशिप क्रेडिट. कि ऑथरशिप मीन्स क्या होता है कि whoever is the part of that paper writing, that research report writing, उसको ड्यू क्रेडिट मिले. तो 2 चीजें चलती हैं. एक होता है घोस्ट राइटिंग. दैट मीन्स कि आपने पेपर नहीं लिखा है, आपके बिहाफ पे किसी और ने पेपर लिखा है. सो एक्चुअली में इट इज समवेयर समवन एल्स राइटिंग एंड आप उसको अपने नाम पर पब्लिश करा रहे हैं. तो दिस इज घोस्ट राइटिंग. समवन एल्स डूइंग योर वर्क, दिस इज घोस्ट राइटिंग. देन सेकंड इज गिफ्ट ऑथरशिप. कि आपने ऑथरशिप किसी को गिफ्ट कर दी. इन अ सेंस मान लीजिए आपने और आपके सुपरवाइजर ने कोई पेपर लिखा. नाउ जस्ट टू इम्प्रेस योर एचओडी, आपने एचओडी का नाम भी डाल दिया कि आपने कोई पेपर लिखा, अपने सीनियर को अपने फेवर में करने के लिए आपने सीनियर का नाम भी डाल दिया. सो आपने क्या किया कि
गिफ्ट कर दिया ऑथरशिप को, विच इज अनएथिकल। सो ऑथरशिप क्राइटेरिया क्या है, प्रॉपर्ली मेंशन है कि जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है वो फर्स्ट ऑथर बनेगा, देन gradually eventually आप क्या करोगे, author 2, author 3, author 4, but again they should contribute something to the paper. Next is intellectual property rights. So intellectual property is your creation of your mind, जैसे हम जानते हैं कॉपीराइट होते हैं जो कि आइडियाज में होते हैं। सो इन कॉपीराइट जब आप पेपर लेके पब्लिश करा लेते हैं, सो कॉपीराइट इज ट्रांसफर टू द पब्लिशर। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपीआर को यूज करने के लिए कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, जैसे कोई पब्लिक डोमेन में नहीं है उसको हम यूज नहीं कर सकते। सो यू हैव टू टेक परमिशन, यू हैव टू सीक देयर परमिशन। अगर कॉपीराइटेड कोई, मान लीजिए कॉपीराइटेड कोई टेस्ट है, तो आपको यू हैव टू परचेज इट, यू हैव टू सीक द परमिशन। एंड नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कई तरीके का हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन इज फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर रिसर्च के लिए आपको किसी एजेंसी ने फंड किया है, फंडिंग की वजह से देयर आर चांसेस कि आपके जो रिजल्ट फाइंडिंग्स हैं वो दे शुड नॉट, इट शुड नॉट बी देयर, बट ऐसा हो जाता है कि आपके रिसर्च फाइंडिंग्स क्या है, बायस टुवर्ड्स दैट फंडिंग एजेंसी। सो दिस इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि आपको वहां से फंड मिल रहा है, एंड देन यू हैव टू बी वेरी क्लियर, और यू हैव टू बी ट्रू टू योर रिसर्च फाइंडिंग्स। फाइनेंशियल असिस्टेंस वही हो गया कि आपको जहाँ से फाइनेंस मिल रहा है, तो आप क्या करते हैं कि जब आप पेपर के एंड में यू हैव टू मेंशन कि दिस वर द ऑर्गेनाइजेशन, दिस वर द एजेंसी जिसने आपको फाइनेंशियली असिस्टेंस दिया फॉर दिस पर्टिकुलर रिसर्च। देन सलामी स्लाइसिंग इज अ कॉन्सेप्ट। सलामी स्लाइसिंग इज अबाउट कि आपका एक रिसर्च पेपर है, मान लीजिए दिस इज योर रिसर्च पेपर। आपने क्या करा, इस रिसर्च पेपर के 4 हिस्से कर दिए। मान लीजिए देयर वर 4 वेरिएबल्स इन योर स्टडी एंड 4000 का सैंपल था। आपने क्या किया कि एक वेरिएबल लेके 1000, एक वेरिएबल 1000 ऐसे करके आपने रिसर्च के 4 हिस्से कर दिए, इसकी स्लाइसिंग कर दी, एंड देन आपने 4 पेपर पब्लिश करा दिए। तो दिस इज अनएथिकल, बिकॉज जो चारों का जो क्यूमुलेटिव फाइंडिंग्स होता है ना, एक टोटल फाइंडिंग जो होता है, दैट वुड बी बेटर टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में फिनोमेना कैसे काम कर रहे हैं। सो व्हेन यू स्लाइस और रिसर्च फाइंडिंग्स, वो हमको क्या कर रहा है, हमको बिट्स में इंफॉर्मेशन दे रहा है, बट जब आप एज अ होल उसको पब्लिश कराओगे तो हमको एज अ एक बिग पिक्चर देखने को मिलेगी। सो सलामी स्लाइसिंग इज अनएथिकल, बट इट इज क्वाइट कॉमन एज वी नो कि देयर इज अ कल्चर ऑफ पब्लिश और पेरिश, उसकी वजह से सलामी स्लाइसिंग यूज किया जाता है। एक अदर तरीका होता है सिलेक्टिव रिपोर्टिंग का। इट इज यूज जब यू आर टू मच अटैच्ड विद योर हाइपोथेसिस, आपको लगता है कि दिस इज माय रिसर्च आइडिया एंड दिस शुड बी एक्सेप्टेड, देयर शुड बी सम रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो आप क्या करते हो, मान लीजिए 5 में से 4 चीजें आपके सपोर्ट में, एक चीज सपोर्ट में नहीं है, तो आपने क्या किया, सिलेक्टिव रिपोर्टिंग कर दी। जो जो चीजें सपोर्ट में उसको रिपोर्टिंग कर दिया, जो नहीं उसको मिस कर दिया। बट आइडियली व्हाट शुड यू डू, जो भी रिसर्च फाइंडिंग्स है उनको एज इट इज एंड जितना डिटेल में पॉसिबल है इसको एक्सप्लेन करेंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई है कि रिजेक्ट हुई है। नेक्स्ट इज पैराडाइम्स ऑफ रिसर्च। एज वी नो कि रिसर्च क्वालिटेटिव हो सकती है, क्वांटिटेटिव हो सकती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च कौन सी होती है, जहां पर वी यूज नंबर्स, जहां पर नंबर्स का यूज किया जा रहा है, दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। एंड जहां पर हम यूज कर रहे हैं एट्रीब्यूट्स का, क्वालिटीज का, दैट इज क्वालिटेटिव रिसर्च। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च का ऑब्जेक्टिव इज मेजरमेंट करना, एक लार्ज सैंपल पर स्टडी करना एंड जो फाइंडिंग्स हैं उनको जनरलाइज करना पॉपुलेशन पर। क्वालिटेटिव इज मोर अबाउट digging deeper into a phenomena. So जो अंडरलाइंग मैकेनिज्म है आप उनको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, डिफरेंट डायमेंशन से देखना चाह रहे हैं, तो दैट इज क्वालिटी रिसर्च। हाँ, in case of quantitative research, usually a large sample is used and large sample is desirable, but not in case of qualitative research. आप एक छोटे से सैंपल पे भी स्टडी कर सकते हो एंड दैट विल बी गुड स्टडी। डेटा एनालिसिस जब हम क्वांटिटेटिव का करेंगे तो हमको स्टैटिस्टिकली डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा, एंड डेटा इज इन फॉर्म ऑफ नंबर्स। एंड क्योंकि क्वालिटेटिव में डेटा नंबर की फॉर्म में नहीं है, तो हमको नॉन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना पड़ेगा डेटा का।
बहुत अच्छा एग्जांपल समझिए, टेम्परेचर। सो व्हेन इट इज इन क्वालिटेटिव टर्म्स तो हम बोलेंगे टेम्परेचर इज कोल्ड है कि हॉट है, एंड व्हेन क्वांटिटेटिव टर्म्स में तो हम टेम्परेचर का डिग्री बताएंगे, कितने डिग्री, 9 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इस हाइट हमने लिया, तो क्वालिटेटिव इज एट्रीब्यूट टू हाइट, टॉल है, एंड क्वांटिटेटिव में हाइट तो हमने एक्चुअल हाइट बता दी नंबर्स में। So this diagram will tell you कि अगर quantitative में we can go for survey, qualitative में we do interviews, quantitative में we can use secondary data, qualitative में we go for focus group, यहाँ पर we can do observational research, यहाँ पर we go for ethnography, ऐसे करके ये सारे कंपैरिजन हो सकते हैं। Then a new approach is mixed method approach, which combines both. हमने देखा ना जैसे क्वालिटेटिव के आपने प्लस पॉइंट से नेगेटिव पॉइंट से सेम क्वांटिटेटिव के, so if we combine both of them, so what is possible, they'll complement each other and exploratory हो जाएगा, जो अंडरलाइंग फिनोमेना उनको भी स्टडी कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम हम उनको क्वांटिफाई भी कर सकते हैं। इसमें दो चीजें समझने की जरूरत है कि हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे एंड प्रायोरिटी किसको रखेंगे। सो इम्प्लीमेंटेशन कैन बी आइदर कॉन्करेंट और सिक्वेंशियल। कॉन्करेंट मीन्स जब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव साथ साथ चलेंगे, दोनों रिसर्च स्टडी साथ साथ चलेंगे, दैट इज कॉन्करेंट रिसर्च, कॉन्करेंट इम्प्लीमेंटेशन मेथड सीक्वेंस। एंड सिक्वेंशियल इसके पहले क्वांटिटेटिव पूरा किया जाएगा, एंड देन हम उस क्वांटिटेटिव के बेस पे क्वालिटेटिव स्टडी करेंगे, और वाइस वर्सा, क्वालिटेटिव करने के बाद हम क्वांटिटेटिव करेंगे। तो सीक्वेंस के बेस पे हम कैसे कर सकते हैं, आइदर कॉन्करेंट और सिक्वेंशियल। नेक्स्ट इज प्रायोरिटी कैसे करेंगे। सो अगर दोनों स्टडीज दे हैव इक्वल प्रायोरिटी, तो इक्वल प्रायोरिटी वाले क्या है, मतलब दोनों दोनों पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि या तो क्या दोनों का इक्वल प्रायोरिटी है, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, या क्या हो सकता है कि क्वालिटेटिव इज इंपॉर्टेंट एंड क्वालिटी, दूसरा हो सकता है कि डोमिनेंट स्टेटस, आउट ऑफ टू एक डोमिनेट करता है, जैसे इस वाले में क्वालिटी डोमिनेट करता है, इस वाले में क्वांटिटी डोमिनेट करता है। सिक्वेंशियल में 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, एक डोमिनेट करता है, एक का इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। सब में से थियोरेटिकल क्वेश्चन ही बन के आते हैं यूजुअली, नॉट पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिंगल क्वेश्चन बन के आते हैं, तो यू कैन स्टडी उसी तरीके से। मेथड्स ऑफ रिसर्च में वी नो ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स क्या है कि हम एक प्रिसाइजली कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे, डिफाइन करेंगे, एंड इन दैट कंडीशन वील एग्जामिन और वील ऑब्जर्व अ फिनोमेना, एंड वील डू इट इन अ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव मैनर, एंड रिकॉर्ड कीपिंग किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा सारे ऑब्जर्वेशन को, वट एवर बी द मैथड, रिकॉर्ड कीपिंग विल बी देयर। सो ऑब्जर्वेशन दो तरीके के हो सकते हैं, आइदर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज जहां पर ऑब्जर्वर और द रिसर्चर इज पार्ट ऑफ द ग्रुप। मान लीजिए मैं किसी ग्रुप को स्टडी करना चाह रही हूँ, तो आई गो एंड बिकम पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, so this is participant observation. The pitfall of participant observation is, see, when I become part of that group, but again I'm a stranger for that group, so क्या हो सकता है कि in my presence their behavior may be changed, so this is the weakness of participant observation. Next is non-participant observation, where researcher is not a part of that group, so a distance is maintained between the group and the researcher, and distance के साथ ही इसको ऑब्जर्व करते हैं, बट अगेन इसका पिटफॉल क्या रहेगा कि we cannot be very sure of our observation, जो बहुत डीप उनका कन्वर्सेशन रहेगा, जो बहुत उनका डीप ऑब्जर्वेशन है, वो मिस कर देंगे। नेक्स्ट इज सर्वे रिसर्च। सो सर्वे इज अ नॉन एक्सपेरिमेंटल एंड डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ रिसर्च। तो आइदर वील यूज स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनराइज, जैसे हम स्केल्स यूज करते हैं साइकोलॉजी में, और विल गो फॉर इंटरव्यू। दोनों तरीके से पॉसिबल है। जब हम क्वेश्चनर का यूज करेंगे तो आइडियली वी कैन इजीली गो फॉर ना ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन। इंटरव्यू के लिए हमको वन टू वन ही करना पड़ेगा। सर्वे रिसर्च दो तरीके के हो सकते हैं, आइदर क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल सर्वे।
क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन कौन सा होता है? जब डेटा कलेक्शन एक सिंगल पॉइंट टाइम पे होता है, सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। मान लीजिए आई स्पेसिफाई दैट डेटा विल बी कलेक्टेड फ्रॉम मार्च टू मे, so this is one point of time, एक बार डेटा कलेक्शन के, दैट्स इट। नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल सर्वे, लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन, जहां पर एक सैंपल है, उसको स्टडी करेंगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें क्या होगा? मल्टीपल मेजरमेंट किया जाएगा, रिपीट मेजरमेंट किया जाएगा। जैसे फर्स्ट वन इज ट्रेंड स्टडीज, एज द नेम सजेस्ट, ट्रेंड स्टडीज में आवर ऑब्जेक्टिव इज टू एनालाइज द ट्रेंड ऑफ अ फिनोमेना, सो हियर द फोकस इज ऑन द फिनोमेना। तो सैंपल क्या होगा? बदलता जाएगा। मान लीजिए अभी मैं जानना चाह रही हूँ कि जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है 2023 के, उनका ई रिसोर्सेज का यूज है। सो माई रिसर्च प्रॉब्लम इज, और व्हाट आई वांट टू नो इज द यूज ऑफ ई रिसोर्सेज इन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। सो मैं 2023 का स्टडी किया, देन नेक्स्ट ईयर अगेन मैंने 2024 में ई रिसोर्सेज का यूजेस चेक किया, जो भी उस समय स्टूडेंट्स थे यूनिवर्सिटी में, उनका चेक किया। तो सैंपल इज चेंजिंग बट द फिनोमेना इज सेम। My phenomena that I want to study is use of e-resources. Next is cohort studies. Cohort क्या होता है? एक पॉपुलेशन में से हमने एक सैंपल लेना है which is subgroup and which is very specific. जैसे मान लीजिए इस वाले एग्जांपल में हमने लिए 2022 के ग्रेजुएट्स, तो जो 2022 में ग्रेजुएट हुए वो हमारे सैंपल का पार्ट हो गए। हमने आज स्टडी किया, फिर सेम कोहॉर्ट को हमने 5 साल बाद स्टडी किया, सेम कोहॉर्ट को अगेन जितनी बार भी उनको स्टडी करना हमने किया। सो कोहॉर्ट स्टडीज में एज वी कैन सी कि हमने मल्टीपल मेजरमेंट करना है एंड सब ग्रुप जो है हमारा सेम रहने वाला है। थर्ड वन इज पैनल स्टडीज। पैनल स्टडीज में क्या है? सैंपल इज सेम एंड डिफरेंट टाइम में हमने उसको स्टडी करना है। सो दिस इज अ क्वेश्चन जो अभी तक पूछा गया इसमें से। 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन साइकोलॉजिकल रिसर्च ABC में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हुए हैं। वी हैव टू अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर in terms of their ability to control secondary variance. Secondary variances are error variance. Experimental variance क्या है? Which is created through our IV, and secondary variance means जो error है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। So descending order में बताना है। सबसे ज्यादा वेरिएंस कंट्रोल कौन कर सकता है? जो कंट्रोल लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स होंगे, बिकॉज लैब में बहुत सारी चीजें ऐसी जो विच वी कैन कंट्रोल। नेक्स्ट इज फील्ड एक्सपेरिमेंट्स, ऑल्दो फील्ड में कंडक्ट किए जा रहे हैं, रियल लाइफ सिचुएशन में कंडक्ट किए जा रहे हैं, बट समवेयर द कंट्रोल इज देयर। थर्ड इज एक्सपोज्ड फैक्टर स्टडीज, जहां पर आईवी का इफेक्ट ऑन डीवी इज ऑलरेडी अकर्ड, अभी सिर्फ हम उसको स्टडी कर रहे हैं। सो द राइट आंसर शुड बी A, C and B. एक और तरीके की स्टडीज होती है क्रॉस कल्चरल स्टडीज। एज वी नो कि बहुत सारे ह्यूमन फिनोमेना, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, दे डू चेंज और दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर कल्चरल बैकग्राउंड। So what are the cultural differences in psychological attributes or traits that we study through cross-cultural studies? So when we compare human behaviors across two or more cultures, that is called cross-cultural studies. Again, systematic comparison करना different culture का, and the aim is to understand variation of human nature, human behavior, how it is influenced by cultural context. So this is cultural studies, cross-cultural studies. हमको compare करना different cultures के बीच में. Then this is next is phenomenology. Phenomenology में क्या है कि it is based on the use of first-hand experience. मान लीजिए कोई भी, as we know कि it all started with psychology में जो study method थे, started with introspection, but gradually we shifted towards observation and then experiments की तरफ shift हो गए. Phenomenology में क्या है कि we want to explain the phenomena with the conscious experience of events. उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कैसा फील हो रहा है, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ, क्रेसवेल ने क्या किया कि पेशेंट, जैसे नर्सेस थे, वो हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स थे, नर्सेस थी, उसमें से कुछ नर्स उनको केयरिंग लगती थी, कुछ उनको नॉन केयरिंग लगती थी। इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट कि उनको कैसे, कौन से केयरिंग लग रही है, कौन से नॉन केयरिंग लग रही है। तो दिस इज फिनोमेनोलॉजी। फर्स्ट
इम्पोर्टेंट क्या है कि फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू आपको जानने को मिलता थ्रू दिस ग्राउंडेड थ्योरी. सो यूजुअली द अप्रोच इज जैसे अभी तक जितना भी हमने पढ़ा दैट वाज बेस्ड ऑन कि देयर इज सम थियरी. On the basis of that theory, we developed a hypothesis. Then we go for data collection, data analysis, and then hypothesis, accept, reject जो भी था. Grounded theory क्या है? It is an approach of theory development. यहाँ पे क्या होगा? data collection and data analysis. It is a iterative process. आप multiple time data collection करोगे, multiple time data analysis करोगे. It will go on and on and on. And then out of this, you will draw a theory. Data collection करोगे, data analysis करोगे multiple times, iterative process है, and then you will develop a theory, and then later on you can verify the theory. आप actually में जाके उसको verify कर सकते हो. तो grounded theory is a approach for theory development, and ये उल्टा चलती है. Not theory पहले नहीं आ रही, theory is the end result. Then we have focus groups. So where we have a research problem जहाँ पर हमको एक group का view point जानने की जरूरत होती है, then we can use focus group design. तो फोकस ग्रुप कैसे हम कर सकते हैं? वी हैव टू आइडेंटिफाई अ टॉपिक एंड गोल्स. जो भी हमारा प्रॉब्लम है, जिस भी टॉपिक के बारे में हम जानना चाहते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना है. देन हमको जानना है कि व्हाट कुड बी आर सैंपल, पोटेंशियल पार्टिसिपेंट कौन से होते हैं. तो हमने पॉपुलेशन, मान लीजिए कोई एल्डरली पॉपुलेशन डिसाइड कर लिया कि वो वाला पॉपुलेशन है. देन वी हैव टू आइडेंटिफाई कि इसमें सैंपल कौन सा होगा, मतलब पार्टिसिपेंट कौन कौन से हो सकते हैं जो हमको एक्चुअल में इंफॉर्मेशन दे अबाउट दिस. Then we need a moderator. The most important point about focus group is it is a specific and directed discussion. It is not a random talk. So जो moderator होगा, गाइड होगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आउटलाइन दे डिस्कशन को, उसको बार बार क्या करें, वो डेविएट ना करें आउटलाइन से. देन फोकस ग्रुप में मैक्सिमम मतलब 6 to 12 पार्टिसिपेंट्स ही फोकस ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं. बहुत लार्ज ग्रुप नहीं चाहिए हमको. The time duration can be 90 to 120 minutes. And then after that analysis is over, the जो भी हमको findings मिलती हैं, they are analyzed. So it is part of qualitative research, quite widely used. Narrative research भी part है qualitative research की. Narratives में हम क्या करते हैं, किसी का जो राइटिंग है, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, कोई बुक है, उसके थ्रू हम स्टडी करते हैं. व्हाट इज हिज परसेप्शन, वो हम उसकी राइटिंग के थ्रू एनालाइज करना चाह रहे हैं. So example is मान लीजिए the discovery of India by J.L. Nehru. So it is somewhere about independence of India या pre-independence era के बारे में बता रहे हैं. तो what was Nehru's vision of India? So that we can study through this book. Autobiography किसी की, उसके पर्सपेक्टिव से हम चीजों को एनालाइज कर सकते हैं. Narrative analysis भी पार्ट है qualitative research का. Then we have case studies. Case studies, as we know, it's an in-depth study of an individual. तो केस स्टडी हम बाकी जो मेथड है लाइक सर्वे, हम क्वेश्चनर का यूज कर सकते हैं. वी कैन गो फॉर इंटरव्यू, वी कैन गो फॉर ऑब्जर्वेशन आल्सो. बट एंड गोल इज कि हमको डिटेल्ड स्टडी करनी है, इन डेप्थ स्टडी करनी है एक इंडिविजुअल की. केस स्टडी के बारे में देयर इज अ मिसकंसेप्शन दैट the findings drawn from case studies cannot be generalized, but this is not so. As we know, psychology की बहुत सारी major theories they came from case studies only. So all the case study थोड़ा उल्टा चलती है because as you know कि usually क्या है कि large sample size है, उसके थ्रू हमने data collection करके analyze करके and then उस population पे generalize कर दिया. That is applicable to each participant of the population. Case study में हम एक individual को study कर रहे हैं and then we are generalizing it to the large group. But बहुत सारे theories हैं which are based on case studies, including Piaget's theory of cognitive development. So he has had children जिनको उन्होंने ऑब्जर्व किया, बहुत डिटेल में ऑब्जर्व किया, एंड देन ही गेव हिज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी. सेम इज फॉर फ्राइड. फ्राइड की जो थियरीज हैं दे आर बेस्ड ऑन हिज केस स्टडीज. देन वी हैव इथनोग्राफी.
So when we have a socio-cultural phenomena जिसको study करना है, and when we study it through close observation, being part of that group, actively part लेके इस group के and closely observe करके when we study a socio-cultural phenomena, it is ethnography. So this is coming from anthropology. Anthropology जिससे हम किसी ट्राइबल को स्टडी ट्राइबल पॉपुलेशन को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो एज अ रिसर्चर वी गो एंड बिकम पार्ट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी. उनके रीति रिवाज को, उनके रहन सहन को, खाने पीने को हम देखते हैं, हाउ डू दे मैनेज, क्या सोशल उनका सेटअप रहता है, कौन कौन से फंक्शंस दे ऑब्जर्व, कौन कौन से डेज दे ऑब्जर्व. सो दिस इज हाउ वी गॉट टू नो अबाउट ट्राइबल ग्रुप्स. बट अगेन नॉट नेसेसरली वी नीड अ ट्राइबल ग्रुप. वो भी एक ग्रुप हो सकता है जो अगेन वी विल हैव टू स्पेसिफाई किस ग्रुप को हम स्टडी करना चाह रहे हैं. एक नॉर्मल पॉपुलेशन वाले ग्रुप को भी हम स्पेसिफाई करके उस ग्रुप को हम क्लोज ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्टिव पार्टिसिपेशन के थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं. दिस इज द क्वेश्चन asked till soon. A researcher is studying group process or software startup developers by staying with them. वो उनके साथ stay कर रहे हैं and like them for 6 months. So which of the following is used by her? The phenomenological research is not, because as we know, it is about first-hand experience. Narrative analysis भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई narration के लिए कोई source नहीं है. Grounded theory नहीं है. As we know, grounded theory में the objective is theory construction. So it is ethnography. Next question is assertion reasoning का. Assertion is focus group. It involves unstructured interview. And then the reason is focus group involves interaction among participants moderated by researcher as a source of data. So both the statements are correct. It is a kind of unstructured interview. We have questions, but then they're not particularly set number of questions or set predetermined questions. Because it is a group discussion, तो वो उसका डायरेक्शन बदल सकता है. But again, there is a moderator, there is a researcher, जो moderator की तरह काम करेगा, and he'll make sure कि जो discussion का direction है, that is right. So इसका आंसर हो जाएगा A. बाकी तो हम कवर कर चुके थे. एक पॉइंट और रहता है which we missed is power analysis. This one. Power analysis is a calculation to determine minimum sample size. As we know कि sample size becomes critical जब हम किसी result findings को generalize करना चाह रहे हैं. So power analysis के through हम decide कर सकते हैं कि what should be the minimum sample size for this study. So 4 components are used. आप यहाँ से समझिए. सबसे पहले सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा. हमने देखा था ना कि अल्फा 0.05 या 0.01. सो 0.05 अल्फा जब होता है दैट मीन्स 5% चांसेस है टाइप 1 एरर होने के. सो अल्फा इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर. यूजुअली अल्फा लेवल इज सेट एट 0.05 लेवल. एंड हम अगर स्ट्रिंजेंट फाइंडिंग्स आते हैं तो वी कैन सेट इट टू 0.01 लेवल. नेक्स्ट पावर ऑफ टेस्ट. सब लिखा स्टैटिस्टिकल पावर ऑफ टेस्ट. So it is 1 minus beta. Usually it is set at 80%. 80% or higher रहेगा. So beta we know, beta is probability of type 2 error, right? So power of test क्या है? 1 minus beta means the extent to which type 2 error will not be committed. So that is power of test. So अगर इसका value हमको रखना है 80% or above. Then third is effect size. As you know, effect size is about magnitude of difference या magnitude of effective results. And हमको ये पता होना चाहिए it is a standardized method. So by convention, if we go 0.10 is a small effect size, 0.30 is medium effect size, and 0.50 is large effect size. So minimum आपसे expect होता है कि आप medium effect size को base बना के चलेंगे. So when you will specify these 3 points, automatically you will get to know what is the minimum sample size. Also remember, this is a minimum sample size, not maximum. So जो आपका software है, usually we use G Power software. This is G Power. G Power आपको बताएगा कि मिनिमम सैंपल साइज इतना है आपकी जो रिसर्च फाइंडिंग है उसके हिसाब से. एंड वो जो आपका सैंपल साइज रहेगा वो आपको बताएगा कि एट अल्फा लेवल ऑफ 0.05
statistical power level of 80% and effect size of 0.30. This is a sample size you need to study for this particular research problem. So this is all we need to cover in this class. Thank you.